सबका साथ सबका विकास का नारा राजनीतिक दल लगाते हैं कि सभी समाजों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा समाज उसमें आज बैकफुट पे है। मेरा एक पंजाब से कोई लोकसभा में नहीं, मेरा एक पंजाब से कोई राज्यसभा में नहीं। क्यों ऐसी अनदेखी क्यों? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। गुज्जर समाज इन्नी ताकत है कि जे कोई पार्टी इग्नोर करूगी तो पंजाब च सरकार पानी भुल जावे। मैं कहना गुज्जर समाज ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। और कमल चौहान भी अच्छे बहुत ही अच्छे लीडर है और कैंडिडेट है, तो उनको भी लड़ना चाहिए। हम समझ रहे हैं और सोच भी रहे कि उनको भी लड़ना चाहिए ताकि गुर्जरों की जो नेतागिरी है उनका वो आगे चल के पहचान बने। इतना संघर्ष जो हमारे समाज ने किया है, जो देश के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर पन्ना दहाई गुजरी है, इतना गौरवान्वित इतिहास है गुर्जर समाज का कि कहा नहीं जा सकता। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁੱਜਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੱਕ ਜੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸੰਨਾਵਾਲ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ। ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਬੈਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਗਰੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜप्पन नहीं। जिते भी बच्चा कोई फोन करता, छोटा जिहा बच्चा फोन कर दिंदा, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कमल चौहान जी सानू क्रिकेट दीयां किट्टां चाहीदियां, सानू ओहदे वास्ते चाहिदी फुटबाल चाहिदी है, सानू टूर्नामेंट वास्ते थोड़ी बहुती सेवा चाहिदी है। कमल चौहान जी एक दिन च अज फोन गया पुछदे आ भी परसों नूं तुहाडे कोल आ गए। इन्ने वधिया कमल चौहान जी इन्ने वधिया लीडर बन सकदे आ। मैं तां कहना भी समाज नूं इहो जिहे बंदियां दी बहुत लोड़ है जी।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਾਤੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ MLA MP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ। मेरा नाम डॉक्टर नचिकेत मुखी। सर लुधियाना पहुंचे हो हाँ जी प्रोग्राम पर, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय यूथ प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हूँ। हम लुधियाना आए हैं, यहाँ पे जो गुर्जर महासभा का हमारा जो एक मिशन लेके निकले हैं कि गुर्जरों को, पूरे हिंदुस्तान में जितने गुर्जर हैं उनको एक करना है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो हमको नहीं मिल रही है। तो हम पूरे इंडिया में ये गुर्जरों को एक करने का एक मिशन लेके निकले। साथ ही साथ जो युवा है, यूथ है, जो पूरे गुर्जरों का यूथ हो या हिंदुस्तान का यूथ हो, वो किसी ना किसी तरह आज डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर समझ लो ड्रग्स की वजह से हो या किसी और संगत में, तो वो सब मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये यूथ वही है, यही जो यूथ है जो हिंदुस्तान में चेंज ला सकता है और एक जो अकाउंटेबिलिटी है या लोकशाही है वो वापस यहाँ जिंदा कर सकता है। तो इस यूथ को भी हम एकजुट करना चाहते हैं। सर 2027 की इलेक्शन होने वाली है, उसके लिए क्या आपको चाहिए गुर्जर समाज से कोई? जी हाँ, जो अगर 2027 में इलेक्शन जो यहाँ लुधियाना में हो रहा है, अगर उसमें हमारे काफ़ी सारे युवा गुर्जर समाज के काफ़ी सारे प्रतिनिधि है और लीडर्स है, और कमल चौहान भी अच्छे बहुत ही अच्छे लीडर है और कैंडिडेट है, तो उनको भी लड़ना चाहिए। हम समझ रहे और सोच भी रहे कि उनको भी लड़ना चाहिए, ताकि गुर्जरों की जो नेतागिरी है उनका वो आगे चल के पहचान बने। सर आपका सहयोग साथ है, आपका सहयोग साथ रहेगा उनको? जी हाँ, हम गुर्जर भाइयों को तो सहयोग करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में वो लड़ रहे हो या किसी भी पार्टी से हो। हम हमारे जो समाज के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मेरा नाम टीटू पटेल है, मैं गुड़गांव हरियाणा से, और मेरे को जो जिम्मेवारी मिली है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा में, वो प्रदेश अध्यक्ष की मिली है। जी सर, क्या कहना चाहते हैं जो आज की मीटिंग रखी? आज जो मीटिंग रखी है, जो हमारा जो समाज है, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो है 1908 से है, और इतना संघर्ष जो हमारे समाज ने किया है, जो देश के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर पन्ना दहाई गुजरी हैं, इतना गौरवान्वित इतिहास है गुर्जर समाज का कि कहा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं अनगोला आ रहा है। हाँ, क्यों? कारण जितना बलिदान इस गुर्जर समाज ने दिया है इस देश के लिए, और इससे पहले नुकसान किसका हुआ है? देखो, मेरा भारत है, ये कौम ऐसी है जिसने अपने मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए मरना मिटना मंजूर समझा, लेकिन झुकना कभी नहीं सीखी। और वही चीज आज हमारी रगों में, हमारे पूर्वज जो करके गए हैं देश की आजादी के लिए, चाहे मुगलों से लड़वा लिया हो, चाहे अंग्रेजों से लड़वा लिया हो, झुके नहीं, हम कभी नहीं झुके। और हमारा सिर फक्र से ऊंचा रहता है कि हमारे पूर्वज कभी झुके नहीं। ये पंजाब की जो धरती है, ये गुरुओं की धरती है। मैं प्रणाम करता हूँ, यहाँ शहादत दी है हमारे गुरुओं ने। अरे आज जो लोग ये कहते हैं कि सिख जो धर्म है, सिख तो मेरी सिख धर्म जो है मेरी आन बान शान है, मेरे सनातन धर्म की, जिन्होंने अपने बलिदान के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने बच्चों का बलिदान कर दिया, जिंदे चिनवा दिए गए। मैं उन महापुरुषों का सत सत नमन करता हूँ। आज मीटिंग रखी है, इसका मेन मोटिव क्या? इनका मेन मोटिव ये है समाज को संगठित करना है। देखिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को खंड खंड में बटे हुए भारत को अखंड बनाया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद ये भारत आज भारत में ही आपको कितने वीजे लेने पड़ते। लेकिन उन महान हस्तियों ने इस भारत के लिए
इस भारत को अखंड बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा बलिदान है। तो आज इस समाज को जो खंड खंड में बैठा हुआ है उसको संगठित करने के लिए गोवर्धन झड़पिया जी जो अपने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। गुर्जर, कुर्मी, पटेल एकता का मंच हम तैयार करेंगे और पूरे भारत में अगर उसकी टोटल आबादी लगाया जाए तो हम बैठते हैं 34 करोड़ गुर्जर समाज, सारे खाली गुर्जर, मतलब गुर्जर समाज, पटेल, पाटिल, आपके कुर्मी, ये सब गुर्जरों की ही एक शाखाएं हैं। इतिहास जो कहते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत लंबा शासक चला और जो लास्ट में जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान था, जो मुगलों से जो टक्करें लिए हैं, जो मुगलों से मुकाबले किए हैं, वो गुर्जर प्रतिहार वंश ने इनको रोके रखा है और देश की आन बान और शान के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के लुधियाना में इस अधिवेशन हुआ जिसमें हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बच्चू सिंह बैसला जी जो राजस्थान से आते हैं और हमारे कमल चौहान जी जो आपके वहां के हैं और पंजाब के अध्यक्ष हैं, फिर हमारे साथ है सतीश भाई पटेल, पटेल महासभा गुजरात के अध्यक्ष हैं और भाई श्री बच्चू सिंह बैसला जी टीटू भाई गुड़गांव से हैं, हरिओम बैसला जी। विषय इतना है कि यह बिरादरी खास करके गुर्जर समाज वो इस राष्ट्र की बहुत बड़ी आबादी है, राष्ट्रवादी प्रजा है। मुगल कालखंड के आक्रांताओं के सामने भी यह कौम लड़ी है, ब्रिटिशरों के सामने भी यह कौम लड़ी है। ब्रिटिशरों ने तो उसको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, आजादी के बाद इस जाति को क्रिमिनल कास्ट से बाहर निकाला। हमारा विषय इतना ही है कि आने वाले समय में यह संगठन गुर्जर महासभा उसके तत्वाधान में हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़े वो भी एक विषय है और हमारा देख के दूसरा समाज भी आगे बढ़े। हम स्वार्थी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि समाज उत्थान से राष्ट्र उत्थान। तो ये समाज की संगठना आने वाले समय में संगठन इतना मजबूत होगा और देश में हमारी प्रजाति बहुत बड़ी है। ये तो गुर्जर टाइटल है, हम भी गुजरात से आए हैं, गुर्जर दरा गुजरात है, तो ये तो कुनबे में बंट गए तो कुर्मी हो गए, कुटुंबी हो गए, कबीला हो गया। लेकिन ये सारा साउथ का रेड्डी, कम्मा, कप्पू, बोकलिंगा, देवगौड़ा, रामगौड़ा, लिंगायत, भोगायत, कुटुंबी, झारखंड के महतो और उड़ीसा के नायक, सारे के सारे अपनी प्रजाति और इन सबको एक करने का इस माध्यम से हमने जो काम शुरू किया है इसमें मैं धन्यवाद देता हूं दोनों गुर्जर महासभा के महामंत्री और यहाँ के अध्यक्ष। और हम चाहेंगे कि हमारे बेटे बेटियां कैसे आगे बढ़े, ऐसा एक प्लान हमने ग्रेटर नोएडा में सभी बिरादरी हमारी जो कुटुंब है उसके बेटे बेटियों के लिए भविष्य होगा, या तो वो नौकरी करेगा या तो नौकरी देगा। नो वन विल बी अनएम्प्लॉयड। आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने पैरों पे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। चुनाव को लेकर जब चुनाव आएगा, 27 में चुनाव आएगा, नहीं अरे भाई जो हम तो चाहेंगे हमारी बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा लोग लड़े और सब विजयी हो, कौन नहीं चाहेगा, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन राजनीति के साथ साथ हमारा काम भी समाज को तरक्की करने का। पार्टी के साथ जब समय होगा उनके ऑब्जर्वर आएंगे, उसमें वो हमारी भी एक व्यवस्था होती है, हर एक पार्टी की वो छानबीन करती है जिताऊ कैंडिडेट कौन है, क्या क्या संभावना हो सकती है। इसलिए इस विषय में मैं नहीं आया आज मैं राजनीति करने नहीं आया। सर भारत की बात करें तो भारत का इतिहास लोगों ने पढ़ा है, चाहे सिख समाज हो गुर्जर समाज का अभी तक इतिहास खासकर बच्चों की बात करें नहीं है, नहीं इसलिए नहीं है, दर्शाया नहीं है, इतिहास है। जैसे बहुत अच्छे साहित्यकार इतिहासविद रहे, तमा मुंशी, दयाराम गुर्जर, राणा हसन अली चौहान, इतने सारे इतिहासकारों ने लिखा
कि ये प्रजा राष्ट्रवादी है, ये प्रजा मुगल कालखंड में संघर्षरत थी, ब्रिटिश कालखंड में संघर्षरत रही, और ये जो हमारे धन सिंह कोटवाल मेरठ के सबसे पहले क्रांतिकारी 1857 में, बाकी तो बाद में हुई, पहली तो मेरठ में हुई, वो धन सिंह कोटवाल, उनके साथ कितने लोग दिल्ली तक कूच करके गए और ब्रिटिशरों को ये भगाने के लिए इतनी साहस, और सारी जो जेलों में थे 850 लोगों को खोल दिया, इतना साहस ब्रिटिश कालखंड। हम तो पंजाब से गए, हमारे पुरखे गुर्जर, हमारे तो पुरखे पंजाब से गए, हम तो गुर्जर है ही, गुजरात में तो पटेल है, लेकिन हम तो पहले गुर्जर हैं क्योंकि हम पंजाब से गए। लेकिन जैसे हमारा कुनबा बढ़ता गया, जैसे मुगल आक्रांत आता गया, ऐसे हमारा बिखराव हो गया, छोटे छोटे कुनबे में बस गए, छोटा छोटा बिरादरी का टाइटल हो गया। लेकिन अब इतिहास फिर से लिखा जा रहा है, हमारी इतिहास की संकलन समिति है और इतिहास का हमारा एक अध्ययन चल रहा है। वी आर सही में वी आर री राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल एज देश के इतिहास में भी हमारी जो अच्छाई है, बुराइयों को हम दूर करें, अच्छाइयों को आगे, और सभी बिरादरी हमारी है, ऐसा नहीं है कि गुर्जर हमारा है, सभी हमारे हैं, ये माँ के बेटे हैं। अगर हम तरक्की करेंगे तो उसका देख के दूसरा करेंगे, उतना ही हमारा विषय है और कोई विषय। मंत्री और इस सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, आप पूछ रहे थे हमारे इतिहास की बात, जो मैं कहता हूँ इतिहास हमारा स्वर्णिम था, स्वर्णिम है, स्वर्णिम रहेगा। और 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक गुर्जर इतिहास था, गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इस देश में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का ने जन्म लिया था। जब गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इस कौम में जन्मा, उसने 49 साल इस देश पर राज किया था। 49 ईयर्स कंटिन्यू इतिहास को, हिस्ट्री को आप खोज के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और उसका नाम था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। तो सम्राट मिहिर भोज के टाइम जब विदेशी आक्रांता भारत पे आक्रमण करने की बात करते थे, उस समय आक्रमण करने की बात छोड़ दीजिए, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के राज के टाइम। 49 साल देश में राज किया उन लोगों ने। अब आप समझिए हमारा इतिहास जो इतना स्वर्णिम था, है और रहेगा। आज राम मंदिर का निर्णय आया, किस आधार पर आया? गुर्जर प्रतिहार वंश ने जो राम मंदिर का बनाया था ना, जब खुदाई हुई, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी, और खुदाई करी उसके उस समय के डायरेक्टर मिस्टर खान साहब थे। वो खान साहब कोई गुर्जर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया, जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ, ये सबमिट किया कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का मंदिर अगर बनाया गया था तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गुर्जर से रिश्ता था, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया। और गुर्जर प्रतिहार ने मंदिर बनवाया, ये अंश जब मिले गए खुदाई के अंदर, और वो अंश जब रिपोर्ट भारत सरकार का एएसआई डिपार्टमेंट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, तब भारत सरकार का निर्णय आया। उसी निर्णय के आधार पर निर्णय आया कि राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए। सर, लुधियाना में सम्मेलन का उद्देश्य क्या? मैं आपको वही उसी लाइन पा रहा हूँ। इसी तरह राम मंदिर का विषय, इसी तरह आपका धारा 370 का विषय। गुर्जर धारा 370 हटा तो दिया गया, लेकिन धारा तल पर जो क्रियान्वित करने का काम किया वो गुर्जर बकरवाल ने सहयोग किया। और भारत के स्वयं गृह मंत्री दहाड़ दहाड़ के बोले देश की संसद में, सर्वोच्च सदन में, कि गुर्जर बकरवालों के कारण ही हम धारा 370 का कानून ला पाए। ये बोला भारत के गृह मंत्री। और जो आप लुधियाना के विषय पर बात बोलते हैं, मैं आपको कहता हूं लुधियाना में इस बात की जागरूकता है कि समाज को एक इकट्ठा किया जा रहा है। मेरे समाज की यह राजनीति में अनदेखी हो रही है। मैं कहता हूं सब समाज का बराबर विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का नारा राजनीतिक दल लगाते हैं कि सभी समाजों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा समाज उसमें आज बैकफुट पे है। मेरा एक पंजाब से कोई लोकसभा में नहीं, मेरा एक पंजाब से कोई राज्यसभा में नहीं। क्यों ऐसी अनदेखी? क्यों ऐसे इस तरह से हमारे कम्युनिटी की क्यों देख रहे? तो हम कौम को इकट्ठा करके और पूरे भारत के गुर्जर के साथ खड़ा करके और पूरी कम्युनिटी को खड़ा करके पंजाब के गुर्जर को भी राजनीति में हिस्सा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, पंजाब विधानसभा में जो हम पूरे समाज को इकट्ठा करने के लिए हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी, तहसील, जिला स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं लगातार पंजाब का प्रवास कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, और 2021 में जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ
उस टाइम भी मैंने गढ़शंकर के अंदर रोपड़ नूरपुर बेदी में एक बड़ी सभा करी थी 10,000 लोगों की, जब उसमें गढ़शंकर से विधायक डिप्टी स्पीकर बने आपके जयकिशन रोड़ी। उस सभा का भी मैंने संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और मैं अब की बार ऐसा इतिहास करने जा रहा हूं कि पंजाब में जो दल मेरे समाज को तवज्जो देगा, मेरे समाज के हकों की जो जहां मेरे हक है, वाजिब सीट है, उन पर अगर जो राजनीतिक दल देगा हम भी उस राजनीतिक दल को उतना ही देंगे, अन्यथा हम भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे जो मेरे कम्युनिटी के लोगों को सामने। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ और किसी भी साडे गुज्जर समाज के नौजवानों या गुज्जर समाज ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ और बहुत ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। गुज्जर समाज जिंदाबाद। और गुज्जर समाज ਅੱਜ गुज्जर समाज 15 सीटां ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ गुज्जर समाज ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿ गुज्जर पूरे ਪੰਜਾਬ ਦੇ गुज्जर समाज ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। और साडे बजुर्ग, साडे नौजवान वीर, साडे सारे साडी सेवा अज तक करते आए हैं, पर हुण गुज्जर समाज के नौजवान आगू अगे आ गए हैं कि गुज्जर समाज का बनता हक इत्थे रख दे। सर 15 सीटें की गल की है, उत्थे कैंडीडेट खड़ा करोगे? बिल्कुल असीं करांगे, हर पार्टी की मंग करांगे, अपने वालों नहीं, हर पार्टी की मंग करांगे। गुज्जर समाज इन्नी ताकत है कि जे कोई पार्टी इग्नोर करूगी तो पंजाब च सरकार बनानी भुल जावे। साडे गुज्जर होने थे लोग आए जी, उन्होंने क्या ना सांसद बनाया गया, ना राज्यसभा तक अजे तक गुज्जर की सीट कटी गई, लेकिन कितने कितने पंजाब की गुज्जर अनदेखी की जा रही। बिल्कुल गुज्जर की अनदेखी की जा रही है। मैं लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा, लोक सभा हल्का आनंदपुर साहब की गल करा 3.5 लाख वोट है। विधान सभा हल्का रूपनगर की गल करा 35,000 वोट है। बड़ा जोर साडे गुज्जर जरूर MLA बनता है, उत्थे साडे गुज्जर समाज की बहुत गिनती है। अगर मैं गल करा खरड़ की, गल करा मोहाली की, गल करा गढ़शंकर की, गल करा हुशियारपुर की, गल करा लुधियाना ईस्ट की, गल करा सानेवाल की, गुज्जर बहुत गिनती दे विच है। इत्थे इन्हां हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गुज्जर निर्णायक फैसला लैणगे और निर्णायक रिजल्ट देणगे ਜਿਹੜੀ पार्टी अगे पिछे करेगी। धन्यवाद। विशेष पार्टी ने कोई देखो विशेष पार्टी असीं सारे तो मंग करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।